After becoming governor, I have had the occasion to be here, and every time interaction with the media was highly rewarding. My Vijay Dashami greetings to all of you. We still continue to be in that spirit. I convey Dasai greetings to brothers and sisters in the hill area. Like the entire globe and the country, our state has also suffered because of COVID. In this area, we have had mortality, some of them very painful, of old people and children of tender age. Our COVID warriors in health sector and in police establishment, we have lost them also. I express my heartfelt condolence at this grave human loss and sympathy with the families of the bereaved. I would appeal to every section of the society that has some capacity to handhold those families and give all assistance which possibly can be given. COVID has made us aware of one thing in particular, and that is our health infrastructure in the state of West Bengal collapsed. Health infrastructure could not measure up to the requisite requirement in spite of our state having enormous human resource. And the reason for that has been ill-advised, unfortunate, confrontational stance of the state government to the well-meaning schemes of the central government. We have had to pay a heavy price. In North Bengal, I have got lot many reports that only tangible, effective health infrastructure was available only with North Bengal Medical College. To have namesake institutions does not give strength in times of crisis. It would have been good for the state, good for the health sector, and good during this crisis if Ayushman Bharat had been adopted by the state of West Bengal. That would have resulted in enhancing of medical facilities, medical education, paralegal facilities, diagnostic centers, and other clinics. Unfortunately, people of the state are paying heavy price for lack of farsightedness and totally misplaced, avoidable confrontation with the central government. Both center and state are two wheels of development. They must be in tandem for betterment of the people. I do hope and believe there will be change. We are part of a great democratic nation. No state can stand alone. There has to be cooperative federalism. There has to be united action, and the purpose has to give relief to the people at large. दो तीन बातें लोग कहते हैं जिस पर मेरे को कड़ी आपत्ति है.
कि आप सरकार से झगड़ रहे हैं, मेहरबानी करके मेरे पर थोड़ी दया दृष्टि रखिए। सरकार मेरे से झगड़ रही है, मैं सरकार से नहीं झगड़ता, मैं किसी से नहीं झगड़ता। झगड़ना न मेरा मानस है न मेरी ट्रेनिंग है। और लंबे समय तक 4 दशक तक वकालत करने के पश्चात भी मैं झगड़ूंगा तो मेरे 4 दशक की तपस्या को आप शून्य में कर देंगे। मैं नहीं झगड़ता। आज भी मुख्यमंत्री से मेरा डायलॉग इंस्टेंट है। झगड़ने वाले आदमी का डायलॉग नहीं होता है, इंस्टेंट है। आई एम अगेंस्ट नो वन बट आई एम अगेंस्ट एवरीवन जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं करता है और जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है। इन अधिकारियों के प्रति मेरा कोई विशेष दुराग्रह हो ही नहीं सकता। हमारे पुलिस अधिकारी जो नीचे के हैं दे आर एक्सीलेंट। कोविड में कितना काम किया, लॉ एंड ऑर्डर में कितना काम करते हैं। यदि अगर मान लो बलविंदर एक पोस्टर बॉय ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया तो पूरे दुनिया के अंदर हम कलंकित हुए हैं, बन गया। पर साधारण कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई वो तो निर्देशों की पालना करते हैं। तभी तो मैं ऊपर वालों को आगाह कर रहा हूं कि आप उनको भी दुखी कर रहे हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो जो कानून के दायरे से अलग जाता है मेरा विरोध वहां शुरू होता है। बाकी वो कानून के दायरे में रहकर क्या काम करता है इसे मेरा अंदाजा नहीं है, मेरा मतलब नहीं है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, नंबर 1। नंबर 2, आप का नाम भी प्रमोद है और आगे मिश्रा भी लिखते हो, तो दोनों देखिए कि आप मेरे एक ट्वीट को बताइए कि महामहिम राज्यपाल जी आपने ये जो ट्वीट किया इससे मेरे को थोड़ी आपत्ति है, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं सबको ये कहता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि अभी 5 डिविजनल कमिश्नर्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की दस्तखत की हुई रिपोर्ट मेरे को भेजी, तो मैंने कोई अपराध किया क्या? पर किसी ने भी अखबार में नहीं छापा कि होम डिपार्टमेंट का ये ट्वीट गलत है, कि उनको राज्यपाल को ऐसे अपशब्द नहीं करने चाहिए, इल एडवाइज, अनऑथेंटिक, रॉन्ग। अरे तो फिर क्या मैं किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से लिखाऊंगा कि रेप वाक नहीं हुआ? डिविजनल कमिश्नर है, 500 लिख कर दे रहे हैं दस्तखत के साथ, जिलाधीश दस्तखत कर कर दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं। तो इसलिए आई कैन अश्योर ऑल ऑफ यू, योर गवर्नर विल नेवर ब्लो हॉट एंड नेवर कोल्ड। Your governor will be consistent. Number 1. I will appeal to media in particular that I am not coming to Darjeeling. I am coming to my another office. दार्जिलिंग राजभवन मेरा कार्यालय है। हो सकता है मैं उस कार्यालय के अंदर रणनीति और भी आगे बदलूं। आप यदि देखेंगे तो राजभवन कलकत्ता को भी कैंप ऑफिस कहा जाता है। जो भी पत्रकार हैं जो मुंडी हिला रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एड्रेस ही है कैंप ऑफिस। आई एम कमिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस। अब यह है कि जब मुझे मौका लगा मैं नॉर्थ बंगाल आया, पर दार्जिलिंग पहली बार जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने दार्जिलिंग का प्रोग्राम बनाया, मेरे सामने 2 अचानक संकट आ गए। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क पर आ गई, ये मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया। जिस मालदा स्टेशन पर मैंने बात की पत्रकारों से, मैंने पूछा कि जब स्टेशन को आग लगाई जा रही थी तो मैंने रेलवे अधिकारी से पूछा आपने क्या किया? बोला हमने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फ़ोन किया पर कुछ हुआ नहीं। आपके राज्यपाल के सामने बड़ी विकट समस्याएं थी। फिर अचानक मुख्यमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई, तो उनको रोकने के लिए कि मैडम रुकिए, आप सबको पता है अखबारों में छपा कि यूनाइटेड नेशंस का रेफरेंडम मत कराइए,
तो इसलिए नहीं आ पाया। लोग कहते हैं कि साहब सर्दी में नहीं जाते हैं वहाँ। मैं न सर्दी देखता न गर्मी देखता, मैं सिर्फ मेरा दायित्व देखता हूँ। जब अर्जुन से पूछा गया उसको मछली में क्या दिखता है, उसको न मछली दिखी न आँख दिखी, उसको पुपिल दिखा। मेरा एक ही काम है, कोई मेरी रणनीति नहीं है। इस रणनीति का इरफान एक ही सिद्धांत है, आर्टिकल 159, टू सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट। जब मैंने आपको कहा कि मेरे पास जितने रिप्रेजेंटेशन आए उनका जिस्ट मैंने दिया है, और बहुत से लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है जो आप पूछ रहे हैं, वो मैं उस लेवल पर गया नहीं। मैंने कहा आप लोग प्रश्न पूछोगे। आई हैव कम विद एन ओपन माइंड, पॉजिटिव अप्रोच, डिटरमिन्ड टू हेल्प द पीपल, टू फाइंड अ सोल्यूशन। कारण यहाँ वो लोग रहते हैं जिनकी प्रतिभा की साख दुनिया ने हिस्टोरिकली मानी है, अनक्वेश्चन तरीके से मानी है, एंड दैट इज देयर। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैसे आज आपको बताता हूँ, देना मेरा एक मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मेरा फ़ोन है। आवाज नहीं आ रही? ये मंत्री जी, আমি পাগলের উত্তর দিই, আমি শিক্ষিত মানুষ, আমি উত্তর দেবো যে প্রপার উত্তর চায় সে উত্তর দেবো। দিলীপ বেসিক্যালি পাগল, কেন বিজেপি সভাপতি আমি জানি না, সর্বভারত থেকে। ये क्या बोल रहे हैं देखिए। নাড্ডার উচিত যে বিজেপি ওকে নিয়ে গিয়ে ইমিডিয়েট চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। হয় পাগলাগড়কে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, আর না হয় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। এসব উত্তর আমরা দিই না। আমরা কাজের লোক, দেখেছেন ফিল্ডে কাজে আছি। আমরা ঘরে বসে প্রেস করি না, আমরা রাস্তায় বসে মানুষের সাথে থাকি। দিলীপ যারা যে স্বপ্ন দেখছে, ये देख रहे ना आप, স্বপ্নই থেকে क्या कुछ है, क्या किया देखिए। जब आपने पिया बता रहा हूँ, खींचातान का कारण है सरकारी कॉरिडोर्स के अंदर कौन लोग प्रवेश कर गए, इंट्रूजन हो गया है। कंसल्टेंट के नाम पर सरकारी तंत्र का कब्जा कर लिया गया है। अधिकारी रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नतमस्तक है। राज्यपाल चुप कैसे रह सकता है? घर में बच्चा भी गलत करती है तो माँ प्रताड़ित करती है कि नहीं करती है? माननीय मुख्यमंत्री की शपथ क्या है और मेरी शपथ क्या, दो का फर्क समझिए। माननीय मुख्यमंत्री की शपथ है शी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरी शपथ है आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं माना है कि सत्ता के गलियारों में टिड्डी दल की तरह कोई छा जाए। और आप सबने कुछ दिन पहले यहाँ देखा ही था, रिपोर्ट कम किया होगा तो देखा ही था यहाँ क्या हुआ है। किला बन गया था कि नहीं बन गया था? एम आई राइट? नंबर एक। पर ये बहुत पॉजिटिव विचार है, और मैं कहता रहा हूँ कि मेरा काम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की सेवा करना है। ये तो समस्याएं इस इलाके की हैं, सरकार ने एक के बारे में भी मुझे नहीं लिखा है। आपको आश्चर्य होगा, 30 जुलाई से आज तक, 30 जुलाई 2019 से आज तक सरकार ने आपके राज्यपाल की कोई मदद नहीं मांगी है, कोई मदद नहीं मांगी है। कितनी भयानक सीन है।
मैं बहुत सी बातें मीडिया को नहीं बताता। मेरी जो पीड़ा है, जो मेरी चिंता है, मेरे चेहरे पर आ जाती है कई बार, पर ये मानकर चलिए आप लोगों को 5% ही पता है। The things I am witnessing are alarming, unheard of, कल्पना से परे है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में उस प्रकार का हो सकता है, तो मैं शब्दों का उपयोग करता हूं। पुलिस की क्रचेस के ऊपर सरकार चल रही है। वी आर गेटिंग क्लोजर टू पुलिस स्टेट। आप बताइए सरकार का कौन सा ऐसा कदम है जिसमें पुलिस की भागीदारी नहीं है, पूजा के उद्घाटन से लेकर। और अब तो पहली बार हर एसएचओ को भी मिठाई गई है और चिट्ठी भी गई है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर देश में अकेला प्रांत है। आई वॉन्ट पुलिस टू डू देयर ड्यूटी बट नॉट प्ले पॉलिटिक्स। अब कोई ये सोच ले कि राज्यपाल तो ऐसे ही बोलता है और सरकारी दफ्तर या थाने या पुलिस व्हीकल या सरकारी व्हीकल राजनीति के काम आ आएगी, बट द पर्सन विल पे अ ह्यूज प्राइस फॉर इट, एंड यू कैन मार्क माई वर्ड्स, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो भी सरकारी नौकरी करता है वो योग्यता से आता है, कड़ी मेहनत से आता है। उस परिवार की 3 पीढ़ियां जुड़ी हुई होती हैं, रिश्तेदार जुड़े होते हैं, दोस्त जुड़े होते हैं। इफ दे स्टार्ट प्लेइंग विथ फायर और एक बार गुमराह हो जाते हैं, उनको यह नहीं पता कि जिनके इशारों पर ये वो काम कर रहे हैं, वो खुद बचने का कवर ढूंढते हैं मौके पर। आसपास भी नजरें फैला लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। इसलिए बट आई टेक इट एज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव सजेशन, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से और भी ज़्यादा पहल हो, और उस पहल में उतनी ज़्यादा पहल करने की कोशिश करूँगा जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी, कि किसी भी तरीके से महाभारत हर हालत में टले। पर वो भी बहुत साल का राज्यपाल बनकर देखिए, पश्चिम बंगाल के बाहर सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। कौन क्या सोचता है मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे तो आग में इतने ज़्यादा आयरन्स हैं कि मैं क्या करूं। मैं ये देखूं कि पुरकाश्ता जी क्या कर रहे हैं, या प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइज़र क्या कर रही हैं, या आपने बड़ी बड़ी तनख्वाह पर इन रिटायर्ड लोगों को ले लिया, क्या वो डीजीपी के सुपर बॉस हैं। अपने यहाँ हालत इतनी ख़राब है, तभी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि दूसरी जगह की आग का ध्यान बाद में दीजिए, पहले अपने यहाँ की आग बुझाइए। यहाँ पर रेप बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग्स बढ़ रही हैं, तो बाहर मेरे बारे में क्या सोचता है वो एक आप अच्छा सोचते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। आज फिर प्रयास करूँगा, और ये बात आप मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे मौका मिले तो। एक तो मिश्रा जी, मैं ये बताऊं कि अंकित गुप्ता एबीपी के एक बहुत ही यंग रिपोर्टर हैं, और अंकित गुप्ता से एक चूक हो गई कि राज्यपाल ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी। ये अंकित गुप्ता से चूक हो गई, उनसे चूक नहीं होनी चाहिए थी। जब उनसे चूक हो गई तो फिर बहुत से लोगों ने, जैसे आप भी भ्रमित हो गए कि मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, ये हो गए ना आप। तो मैंने उसी समय मैं थोड़ा चिंतित हुआ कि भाई मैं चीफ जस्टिस को चिट्ठी क्यों लिखूंगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो उसी हिसाब से हो। तो मैंने फिर तुरंत एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको बताता हूँ। और उसके अंदर मैंने, आपने सुओ मोटो करेक्शन कर कर बहुत अच्छा काम किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप मुझे अच्छे लगे थे।
तो मैंने ये कहा, आई होलसमली अप्रिशिएट रिपोर्टर अंकित गुप्ता एट एबीपी न्यूज गेटिंग सो मोटो इनटू करेक्शनल मोड फॉर द लैप्स। मैंने आगे भी लिखा, दीज आर पिटफॉल्स सफर्ड बाय ऑल ऑफ अस। ये आपसे गलती हो सकती है, मेरे से हो सकती है, एट वन टाइम और द अदर। आई फाइंड नो इंटेंट देयर इन प्रेस मीट आई अप्रिशिएटेड हिज प्रोफेशनलिज्म। ताल्लुक जैसे इरफान ने कहा था ना कि ठंड और गर्म, तो मैंने कहा मैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं करूँगा। तो आपने कहा कि मैं वोकल हूँ, मैं वोकल नहीं हूँ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वोकल है। हर सप्ताह पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। रेप के फिगर्स मैंने आपको बताए हैं। अलकायदा ने पांव पसार दिए हैं। फ्री बॉम्ब्स बन रहे हैं। बॉम्ब्स में कितने लोग मारे गए हैं। ऐसी बार्बरिक पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। जब मैं डीजीपी को बुलाता हूं तो चिट्ठी मुख्यमंत्री लिखती है। राजीव कुमार को बचाने के लिए तो उन्होंने एक स्टैंड लिया ही था, और डीजीपी को बचाने के लिए भी 26 सितंबर को चिट्ठी लिखी, जबकि डीजीपी को मैंने डेडलाइन दी थी। तो मैं वोकल नहीं हूं। मैं तो जितनी भयानक स्थिति है उसका आकलन कम कर रहा हूं। राज्यपाल के कहने के बाद, 5 सितंबर को आगाह करने के बाद, 10 सितंबर को डीजीपी को दोबारा कहने के बाद, डीजीपी की 2 लाइन की चिट्ठी की सब कुछ ठीक है, अमन चैन है, मनीष शुक्ला की हत्या होना कितना भयानक है। मैं वोकल नहीं हूं। हालात लॉ एंड ऑर्डर के भयानक हैं, और हालात भयानक इसलिए हैं कि राज्य के अंदर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को ध्यान में रखकर, अपना पब्लिक सर्वेंट का चोला अलग रखकर जो काम कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विथ फायर। इसलिए मैंने कहा कि हालात चिंताजनक हैं। क्या मानव अधिकारों के मामले में चिंता का कारण नहीं है? A retired Chief Justice of Calcutta High Court, chairman of the commission, says, my commission is on ventilator, my commission is in ICU। और आप लोगों की चुप्पी है, वरना मानव अधिकारों के मापदंड में जो कुछ यहाँ हो रहा है वो आप लोगों की बदौलत देश के मीडिया को भी नहीं पता है। डेमोक्रेसी के कंटूर्स यहाँ कितने कंप्रोमाइज हो गए हैं। डेमोक्रेसी का तंत्र अंतर से कितना खोखला हो गया है। जैसे कि शरीर को टीबी पहले करती थी बर्बाद, वो हालात हो गई है। आई एम नॉट ओवर प्लेइंग द सिचुएशन, आई एम अंडर प्लेइंग द सिचुएशन। मैंने 18 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री को राइटिंग में लिखा है, फाउंडेशनल फैक्ट्स दिए हैं, और मैंने उनको कहा है कि व्यवस्था को इतना मत बढ़ाइए कि मजबूरी में ये निर्णय करना पड़े कि हम संविधान से बहुत दूर भटक गए हैं, कानून के रास्ते को भूल गए हैं। सुधार लीजिए। मेरा पर्पस है, वी मस्ट गेट इनटू रेक्टिफिकेशन मोड, वी मस्ट बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्मेशन। इसलिए रही बात, यह मेरा दायित्व है कि विषम परिस्थितियों की जानकारी गृह मंत्रालय को दूं, विस्तार से चर्चा करूं, पर मर्यादा क्या कहती है कि जो चर्चा मेरी माननीय गृह मंत्री से है उसकी सार्वजनिक चर्चा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। पर मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी 18 अक्टूबर की, वो पब्लिक डोमेन में है। मैंने ये नहीं कहा, ये तो प्रश्न नहीं है, ये तो मेरा ओपिनियन पूछते हैं, प्रश्न पूछिए आप। राज्यपाल का मत एक है, उसका कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। राज्यपाल एक हस्तिनापुर से जैसे बंधे हुए थे ना विषम पितामह, तो मैं भारत के संविधान से बंधा हुआ हूँ, और भारत के संविधान से उस हद तक बंधा हुआ हूँ जिस हद तक विषम पितामह बंधे हुए थे। उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है, भयानक चीजें देखी हैं, आगाह करता रहा हूं, पीड़ित होता रहा हूं। पर एक बात के बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है,
गवर्नर इज नाइदर अ रबर स्टैंप नोर अ पोस्ट ऑफिस। गवर्नर किसी का पिट्ठू नहीं है। गवर्नर किसी से कमांड नहीं लेता, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को किड ग्लोव्स नहीं दे रखे हैं। आई डोंट हैव फीट ऑफ क्ले। गवर्नर को बहुत बड़ी रीढ़ की ताकत संविधान देता है। मतलब यदि अगर पड़ोस में देखेंगे और जो समकक्ष राजनेता हैं उनकी सैंक्शन कौन देता है? गवर्नर का बहुत अहम रोल है। एंड नो रोल कम्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो मैं मीडिया को कहूँगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की स्पीच बजट सेशन में ब्लैकआउट हुई थी, मीडिया चुप क्यों था? जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को कार्निवाल में ब्लैकआउट किया, चुप क्यों था? मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। मीडिया इस पर फोकस नहीं कर रहा है। बट आई कैन टेल यू, दोज हु थिंक ऑफ डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी हैव बीन डिस्ट्रॉयड इनवेरिएबली। नंबर 1, आप कितने ही बड़े हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। आम आदमी बहुत परेशान है। पूछा है मेरे से उन्होंने। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप अपने अंदर की ताकत पहचानिए और ये प्रश्न पूछिए जहां पूछा जाना चाहिए। रही बात व्यक्ति क्या करता है नहीं करता है, ये मेरा सरोकार नहीं है। राजनीति के अंदर कौन क्या रंग करेगा, कैसे करेगा, उनका विवेक है। राजनीतिक दल क्या रणनीति करते हैं, व्यक्ति क्या करता है, उनका है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। पर कानून के दायरे से जो दूर हटता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, वाई शुड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसपी दार्जिलिंग हु आर 2012 बैच ऑफिशियल्स बी पॉलिटिकल वर्कर्स? तो ये है। पर उस विषय पर मीडिया शुड प्ले इट्स रोल। मैं तो यही कहूँगा, अ फ्यूजिटिव ऑफ लॉ इज अ फ्यूजिटिव ऑफ द सोसाइटी एंड मस्ट बी यूनिफॉर्मली ट्रीटेड। ये मेरा दृढ़ मत है। कानून के सामने सब यदि बराबर नहीं होंगे तो ये गलत होगा। यदि अगर मैं एक वांटेड क्रिमिनल से मिलता हूं, मैं बहुत बड़ा गलत काम करता हूं। अनजाने में करता हूं तो भी गलत करता हूं, क्योंकि अनजाने में आप गलती कर सकते हैं, मुझसे गिरी इरफान आप कर सकते हैं, पर राज्यपाल कैसे कर सकता है जिसके पास इतना लवाजमा है? ही कैन टेक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, अंदर घुसते हुए चेकिंग होती है, तो ही मस्ट फाइंड आउट। उसका मतलब उससे कहीं कहीं चूक हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ बताएंगे केंद्र सरकार ने क्या सुरक्षा दी उनको? मैं जानना चाहता हूं ताकि मेरे क्लैरिटी हो जाए। राज्य सरकार ने दी वो प्रश्न आ चुका है। नहीं सुनो, राज्य सरकार ने जो सुरक्षा उनको दी वो आ चुका है। केंद्र ने क्या दी ये आपकी जानकारी हो सकती है, मेरी नहीं है। मेरी जानकारी नहीं है। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। इन 8 जिलों में जाऊंगा, देखूंगा कहाँ क्या हो सकता है, आप लोगों से चर्चा होगी। आई एम ऑल्सो ओपन टू 1-to-1 इंटरेक्शन एट दार्जिलिंग। इट विल हेल्प मी नो ऑल ऑफ यू मच बेटर। गवर्नर का ट्वीट हैंडल देखिए, 2 दृष्टि से। एक तो पूरी जानकारी मिलेगी, और नंबर 2 प्रमोद जी मुझे बताएंगे कौन से ट्वीट से इनको आपत्ति है।